Okay, ji. Welcome to the lecture number 8. So this is the lecture of analytical chemistry for the students of botany and zoology for the fourth semester. So in this lecture, we will discuss about the mode. Actually, we are studying about the handling of data. In previous lectures, you learn about the means and median. So this lecture will cover the application of how to calculate the mode and what is mode and what's the values of mode in handling of data. So these are the main key points and key concepts for today's lecture. So in previous lecture, you learned how to calculate the median of this group data. If you have a group data in this form, then how to calculate the medians of the this data. So we have a equation, this kind of by applying this equation, you can calculate the median. In this case, you have to find this median class. First of all, you need to find out median class. If you find this median class, you can find out uh, this value. This is the L values, lower class values of this digits, and then you can calculate the PCF, and then you can calculate the frequency of this class. So by using this equation, you can calculate the group data. If you have a group data, you can calculate the median of that problems. So next is the continuation of this median. If you have a data in discrete series like this, you can see this, there is only 45, 55, 25, 35, 5, 15. While in previous case, you have a group data 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. So in this case, you have only one number. So this is called discrete series. So in this case, how to calculate this median? So similar like previous cases, first of all, you need to calculate the CF, commutative frequency. So these data are given in problem. So just you need to add this. So you can calculate the values of n, which is equal to 180. So you have to calculate the CF values. So as I already told that in case of first, so you just put same number. If you have 5, then there is a CF value of 5. If you have 20, you need to put there 20. So in this case, we have a number of students, means the values of f is 10. So here is also 10. So in secondly, then you have to move to the calculate the CF values of this 15. So in this case, you need to add these two values. If you add this 10 into 20, you will get 30. So similarly, you can go onwards. So in this case, 30 plus 30 is equal to 60. Then 60 plus 50, 110, 110. Then you calculate this 110 into 40, you will get 150. And then you can go onwards by adding this 150 into 30, you will get 180. So as you know that if you got these two values, if you see this n values and this last CF values is always same. If you got different values, it means you have some mistake. So by knowing this n values and CF values, you can go to the step number 2. In step number 2, here is a formula n plus 1 divided by 2. So n is equal to 180, sum up of this one. So 180 divided plus 1 is equal to 181 divided by 2. You will get this digit 90.5. So moves towards the this table. So here you can check there is no 90 point something. So it means 90 is above this digit. 60 to 110. So step 3 is the commutative frequency, which includes 90.5 is equal to 110.
See onwards this 60 to 110. So your median, you need to check this 110 in table. If you see there is a median is equal to 35. So in this way you can calculate the median if you have a discrete values. So if they want to know about the frequencies, you have a frequency of this 50 in this case. ओके जी, यहाँ तक जी समझ आई है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहले की तरह ही है, लेकिन पहले में हम क्या करते थे, उसमें हम सी एफ की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू भी निकालते थे, इसके अलावा ये फ्रिक्वेंसी भी निकालते थे, और उसमें हाइट जो है क्लास की हाइट जो आई थी वो भी निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेंज में डेटा नहीं, ग्रुप डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, तो आप सिंपली कैलकुलेट करें। सिर्फ आपने यहाँ से सी एफ कैलकुलेट करने के बाद आपने इस डिजिट को फाउंड करना है, कौन सा आ रहा है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगा के इसमें आपने देखना है कौन सा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास 130 आता है जी, ठीक है, n+1 फार्मूला लगा के आपके पास यहाँ मैं कहता हूँ 130 आता है। तो 130 के केस में कौन सा आपका जी मीडियन होगा जी, 130 किस रेंज में आएगा जी, 150 के बाद आएगा या 110 से आगे आएगा, कहाँ पे आएगा जी? 110 के आगे आएगा। आगे कौन सा आ रहा है? इस टेबल में आपके पास क्या दिया है, 150 दिया, 145 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 150 की जो है लाइन में आएगा आपका जो 130, अगर उसमें n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो 150 में आपका जो मीडियन आ जाएगा वो कौन सा होगा फिर, 45। ठीक हो गया? ओके जी, हाँ वेरी सिंपल जी। नेक्स्ट है जी, हम चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी मॉड। आपने देख लिया जी मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स है क्या चीज़ है, मीडियन आपने देख लिया जी। नेक्स्ट है जी मोड। मोड क्या चीज़ होती है जी? मोड क्या होगा जी, इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज। अब मोड सिंपली आप क्या कह सकते हैं, एम ओ, एम मीन मोस्ट, ओ मीन ऑफन। किसी भी जो आपके पास सीरीज है या डेटा दिया हुआ है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज आ रही हो, उसको मोड कहते हैं। मीन रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होगी, कोई भी वैल्यू दी हुई है, एक आपके पास डेटा पूरा दिया हुआ है, उसमें एक डिजिट जो है जितनी दफ़ा जितना ज़्यादा आएगा, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा, उसका मोड कहते हैं। ठीक हो गया जी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आएगा आपके पास, या मोस्ट रिपीटेशन जिस डेटा की होगी, उसको आप मोड कहेंगे जी। अब हम देखते हैं जी क्या जी। अब आपके पास एग्जांपल दी हुई है जी, पहले देख लेते हैं जी। मॉड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट, इट हेल्प्स। अच्छा जी, अब आपके पास एक डेटा दिया हुआ जी, ये एक डेटा फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ जी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3, 5, 6, 3, 1। अब जी एक तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, इससे बेटर ये होता है कि आप इसको अरेंज कर लें, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ आप इसको अरेंज कर लें। जब आप अरेंज करेंगे तो आप देखें कि यहाँ से मैं देखता हूँ जी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा जी, ये 1 आ रहा है, ठीक है, आपने 1 लिख लिया। आप देखें इसके बाद भी कहीं 1 तो नहीं आ रहा, देखें ये भी 1 आ गया, 1 फिर दोबारा आपने लिख लिया। 1 के बाद जो बड़ा डिजिट आता है वो कौन सा आता है जी, 2। 1 टाइम 2 आ गया। इसके बाद देखें आगे भी है कोई से, यहाँ 2 है, ठीक है। फिर मजीद आप आगे जाए, नेक्स्ट देखें कोई 2 नहीं है, इसके अंदर 2 वाला फिनिश हो गया। 2 के बाद आता है 3 लिख लिया आपने। उसके बाद देखें आगे 3 है, 3 है, 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद देखें आगे क्या, 3 है, 3 है जी, 3 टाइम्स आ गया जी आपके पास, 3 टाइम्स। अब 3 के बाद आता है जी 4 देखें जी आपके पास आ गया जी, 4 आपने लिख लिया 1 टाइम, उसके बाद 4 नहीं है। Then you need largest value after 4 is 5 देखें जी 5 है, 5 लिख लिया, एक ही दफ़ा है जी। उसके बाद 6 आता है जी, 6 भी 1 टाइम है, तो आपने इसको अरेंज कर लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हमने मोड को डिफाइन कैसे किया कि ऐसा डिजिट या ऐसी वैल्यूज जो ज़्यादा हों या मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्स हों, जिसकी जो है ना जो ज़्यादा अपीयरेंस शो करे, ज़्यादा टाइम उसमें उस डेटा में हो, रिपीटिशन उसकी ज़्यादा हो। तो अब देखें
इसमें 1 1 2 टाइम्स है, 2 2 2 टाइम्स है, 3 3 3 3 टाइम्स है जी आपके पास, 4 सिंगल टाइम है, 5 सिंगल टाइम है, 6 सिंगल टाइम है। So according to the definition, the mode is the most frequent values or most repetitions. तो देखें ये 3 वाली जो वैल्यूज है 3 दफ़ा आ रही है, तो इसका मतलब है इस जो डेटा में जो आपके पास होगा वो जो मोड होगा वो 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपीयर जो है मोस्ट टाइम्स एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ तक की मोड की समझ आ गई है कैसे कैलकुलेट करना है अगर सिंपल डेटा दिया हो। यस सर। ओके जी, चलो जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जी आपके पास मोड। आपके पास जो मोड हो सकता है मोर देन 1 टाइम भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी मोड आपके पास हो सकते हैं। आगे देखेंगे अगली कहीं 1-2 स्लाइड के बाद कि उसको हम क्या क्या कहते हैं। अगर एक से ज्यादा हो क्या होगा, 2 दफा हो तो क्या होगा, 3 दफा हो तो उसको क्या कहते हैं, 4 दफा तो क्या कहते हैं। अब ये एग्जांपल आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है, ऑलरेडी अरेंज है जी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज। आपने देखा कि एक जो है एक ही दफ़ा है, 3 3 3 3 टाइम्स है जी। इसके अलावा 5 एक दफ़ा है, 6 6 जो है 2 टाइम्स है, 9 9 9 3 टाइम्स है। तो आप देखें जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ है वो आपके पास दोनों इक्वल हैं, 9 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। तो आपके पास जो मोड्स होंगे वो कौन से होंगे जी, आपके पास 3 मोड होगा आपके पास एक, और दूसरा कौन सा होगा, 9 होगा। मीन एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं किसी भी डेटा में। हो गया जी। चले जी, नेक्स्ट है जी आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है जी, यू नीड टू कैलकुलेट द मोड ऑफ दिस डेटा। सो जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अरेंज दिस डेटा इनटू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आपने अरेंज करना है, उसके बाद आपने देखना है जी आपके पास कौन सा इसमें मोड आ रहा है, कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है या 2 आ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं जी विद अरेंजिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ आपके पास 1 कितनी दफ़ा है जी, एक दफ़ा, इसका मतलब है 1 नहीं हो सकता। 5 कितनी दफ़ा है जी, 1 2 3, आप साइड पे कहीं लिख ले, 3 टाइम्स 5 है जी। 6 कितनी दफ़ा है जी, 1 2, 6 हो गया जी 2 टाइम्स। 4 हो गया जी 1 टाइम। 3 हो गया जी 1 2 टाइम्स, ठीक हो गया। और 6 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 10 1 टाइम है। सो अगर आपने लिखा होगा साइड पे तो आप देखें ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपके पास आ गई 5 की, 5 1 2। तो अगर अरेंज करने के बाद देखें आपके पास कि इस तरह का पैटर्न आएगा, इस तरह की सीरीज आएगी या ट्रेंड आएगा, तो यहाँ से 3 दफ़ा जो आपके पास आएगी वैल्यू, वो आपके पास जो है इस केस में 5 है जी। तो इस केस में जो आपके पास मोड होगा वो 5 होगा जी, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह जी एक और एग्जांपल है आपके पास, कहते हैं कि आपके पास डिजिट हैं जी, 11 है, 23 है, 22 है, 14 है, 23 है, 10 है, 11 है, 16 है, 19 है जी। इस केस में जनरली बाय लुकिंग आप देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से डिजिट ज़्यादा हैं और कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं जी आपके पास। 11 देखें जी, 11 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है। 23 2 टाइम्स है। 22 1 टाइम है। 14 1 टाइम है। 23 2 टाइम्स था। 10 1 टाइम है। 11 2 टाइम्स है। 16 1 टाइम है। 19 1 टाइम है। तो इसका मतलब आपके पास 23 2 टाइम्स और 11 2 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अरेंज ना भी करें वैसे भी आप बाय लुकिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटर ये होता है, क्या मसला है? बेटर ये है कि आप इसको अरेंज कर लें, ठीक है। डेटा जब अरेंज करेंगे तो आप इजीली उसको जो फाइंड आउट कर सकते हैं। शोर ना करें जी, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस केस में आपके पास जो है ना मोड आ जाएगा जी 11 एंड 23। 23 जो आपके पास है ये होगा क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है इसमें जी, 11 और 23। तो आप इसका जो है मोड कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे जी।
अब जी आपके पास एक और वैल्यू दी हुई है, इसमें देखें जी आपके पास 11 है, 11 आपके पास है जी सिंगल टाइम, 23 आपके पास क्या जी सिंगल टाइम है आपके पास, 22 सिंगल टाइम है, 14 सिंगल टाइम है, 10 सिंगल टाइम है, 12 सिंगल टाइम, 16, 19। तो अब क्या होगा, आप जब अरेंज करेंगे तो देखेंगे इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज हुआ हो, जो या रिपीट हुआ हो। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जो मोड होगा वो कोई भी मोड नहीं होगा जी। ठीक हो गया जी। ओके जी। नेक्स्ट है जी मोड, हमने कैसे बताया कि जो है इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है मोड को। आपके पास यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है और मल्टी मॉडल भी हो सकता है। अब पिछली एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास जैसे चलें जी, ये एग्जांपल, इसमें देखें एक ही मोड आपके पास आया, तो इसका मतलब है इसको हम, अगर एक ही मोड आए तो उसका हम यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस केस में आपके पास क्या आ गया जी, दो मोड आ गए आपके पास, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, बाई मॉडल कह सकते हैं। अगर आपके पास तीन मोड आ जाए तो ट्राई मॉडल कहेंगे, अगर मल्टीपल मोड हो तो आप क्या कहेंगे, अगर तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा हो तो उसको मल्टी मॉडल कहेंगे। इको कैसे हो, तो आप कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ मोड पे, अगर नंबर ऑफ मोड एक है तो आप उसको यूनी मॉडल कहेंगे, अगर दो हैं तो बाई मॉडल, अगर तीन है तो ट्राई मॉडल कहेंगे, या उसको हम मल्टी मॉडल भी कहते हैं, दो से ज्यादा वाले को मल्टी मॉडल भी कहते हैं। अब जी आपके पास एग्जांपल है जी, एक टेबल दिया हुआ है, इस पे स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, भी शोर सेक्शन आ रहा है बी काफी। एंड सेक्शन सी। सो तो इस केस में आपके पास है जी तीन टेबल्स सेक्शंस दी हुई हैं, उनके स्कोर मेंशन किए हुए हैं जी। अब आपने नंबर वाइज आपने देखना है कि सेक्शन ए में कौन सी चीज़ मोड है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी में क्या है। अब सेक्शन ए में बाय लुकिंग टेबल भी आप कर सकते हैं, बाय अरेंजिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो इजी होता है, आपको पता चल जाता है क्या। अब जी टेबल सेक्शन ए देखते हैं जी आप, 25 देखें जी कितने टाइम है, एक टाइम है, 24 1 2, इसके अलावा जी 24 होगा जी 2 टाइम्स, 20 होगा आपके पास 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया, 16 आपके पास 1 टाइम, 12 1 टाइम, 10 1 टाइम, 7 1 टाइम। तो आपके पास जो इस केस में 20 या 3 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब है ये जो 20 है आपका वो होगा इस सेक्शन में मोड होगा आपके पास। लेकिन ये कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, तो इसको हम यूनी मॉडल कहेंगे, या यूनी मोड होगा, और सेक्शन ए में 20 होगा आपके पास। सेक्शन बी की तरफ चलें जी, उसके स्कोर्स देखते हैं जी, 25 है जी, 25 देखें और किसका है, नहीं है जी। 24 है जी, 24 एक है, दो है आपके पास है, 2 टाइम्स है जी। 20 आपके पास कितने टाइम है जी, 1 टाइम। 18 आपके पास 1 2 टाइम्स है जी। 17 1 टाइम है, 10 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। तो आपके पास क्या जी, 24 आ गया जी 2 टाइम्स, 18 आ गया आपके पास 2 टाइम्स। तो इस केस में आपके पास दो जो है डेटा जो है एज ए मोड एग्जिस्ट करता है, तो इसको आप तो बाई मॉडल कहेंगे। तो आपके पास जो डिजिट आए हैं वो कौन से, 24 है और 18 है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी फॉर दिस सेक्शन सी, स्कोर्स ऑफ सेक्शन सी। 25 है जी आपके पास, 1 2 3, 3 टाइम्स है जी 25, बाकी नहीं है। इसके अलावा 22 आपके पास है जी 1 टाइम, 21 है जी 1 2 3, इस तरह 18 आपके पास 3 टाइम। तो आपके पास है जी 25 3 टाइम, 21 3 टाइम, 18 3 टाइम। सो इट मीन्स यू हैव 3 काइंड ऑफ मोड। ट्राई मॉडल आपके पास है जिसमें 25 है, 21 है और 18 है।
तो इस तरह का अगर डेटा हो तो आप इनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो है अगर एक होगा यूनी मॉडल होगा, पिछले टेबल में जैसे हमने देखा 20 है। इसी तरह अगर 2 दफ़ा मोड होगा बाई मॉडल उसको कहेंगे, और इसमें क्या था 18 24 था। इसके अलावा अगर 3 दफ़ा हो या 4 दफ़ा हो उस बेस पे हम कहेंगे जी मल्टी मॉडल कह सकते हैं आप। इस केस में जी आपके पास 18 था, 21 था, 25 मीन के ट्राई मॉडल था ये वाली सेक्शन जो है, ठीक है। इस तरह का टेबल दिया होगा तो आपने उसमें से मोड निकालना है जी, देखना है कि क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं जी। अगर जी अनग्रुप डेटा आपको दिया हो जैसे पीछे आपको बताया है, तो वही एग्जांपल है, एक एग्जांपल दी हुई है, आपने कैसे कैलकुलेट करना है। आपको डेफिनेशन इसकी पता चल गई कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज होगी जी, मोस्ट रिपीटिशन जिस वैल्यू की होगी वो आपके पास मोड होगा जी। अब एग्जांपल है जी आपके पास, सिंपल सी एग्जांपल है जी, ये दी हुई है कि आपने इस सीरीज में से मोड निकालना है। आपके पास है 8 है, 9 है, 11 है, 15 है, 16 है, 12 है, 15 है, 3 है, 7 है, 15 है जी। अब देखें जी, अगर आप अरेंज करते हैं तो इजी हो जाता है, अरेंज नहीं भी करते हैं तो आप फिर रिमेंबर करना पड़ता है कौन सा डिजिट कितनी दफ़ा आया जी। अब इस केस में देखें जी 8 एक ही दफ़ा है जी, 9 ओनली वन टाइम, 11 वन टाइम, 15 1 2 3 15 3 टाइम्स, 16 वन टाइम, 12 वन टाइम, 15 हमने देखा 3 टाइम है जी, 3 वन टाइम है, 7 है, फिर 15 है। तो इसका मतलब मोस्ट जो फ्रीक्वेंट वैल्यूज है, जो रिपीटिशन है या ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास 15 की है। तो इसका जो मोड होगा आपके पास वो क्या होगा, 15 होगा जी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है ये रिपीट हुआ है जी आपके पास। वो था जी अनग्रुप डेटा के लिए। अब आपके पास आ जाता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में देखें जी आपके पास जी एक इक्वेशन है, आप इसको जो है ना अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह की इक्वेशन है बस थोड़ी सी चेंज है जी। एम ओ मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है एल प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाई आई। एम ओ मोड है, एल क्या जी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और डेल्टा 1 क्या जी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, ठीक है। इसी तरह डेल्टा स्लाइड 2 क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड शो फ्रीक्वेंसी नहीं हो ऑफ रही। मॉडल क्लास एंड द स्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। ओके वेट कर लेते हैं, अभी यहाँ तो शो हो स्लाइड रही है, जैसे यहाँ शो हो रही है जैसे शो हो तो बताएं, फिर रिपीट कर देते हैं। ओके सर अभी नहीं हो रही। जैसे शो हो तो बताना आपने। जी सर अभी नहीं हो रही। बाकी लोगों को भी शो हो रही है, नहीं हो रही, सिंगल प्रॉब्लम है। हमें शो हो रहा है सर, शो हो रही है। बाकी लोगों को हो रही है। यस सर। ओके, इंटरनेट का आपका मसला होगा। चलिए देख लें जी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों को शो हो रही है देखें जी, आपके पास ये इक्वेशन है जी, जिसमें दिए हुए हैं एल आपने कैलकुलेट करना है, फिर डिफरेंस उनका निकालना है जो है फ्रिक्वेंसी का 1 है, एक आ जाएगा, एक 1 प्लस 2 है मल्टीप्लाई बाई आई है। एम वो मोड को रिप्रेजेंट करेगा, एल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होगी आपके पास। इसके अलावा आपका डिफरेंस निकालना है मॉडल क्लास में से जो प्री मॉडल होगी 1 वाले केस में, और फिर डिफरेंस निकालना है मॉडल क्लास में से जो है पोस्ट मॉडल क्लास का। और आई क्या होगा साइज ऑफ द मॉडल क्लास, जो हाइट है ये साइज है, जैसे पीछे हमने देखा था। उसी तरह जी आपके पास इस फॉर्म में डेटा दिया होगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट द मॉडल सेल्स ऑफ द 100 कंपनीज। अब ये नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई है जी, हम कहते हैं कि 12 जो है सेल करती हैं कितने 58 to 60 लाख जो है, ठीक है सेल। इसके अलावा 18 इतने कर रहे हैं, 25 इतने कर रहे हैं, सो तो आपने इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है जी। अब इसमें आपने क्या करना है जी, देखना है कि जो हाईएस्ट डिजिट है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके पास,
पूरे डिजिट में देखें आपके पास 12 है, 18 है, 25 है, 30 है, 10 है, 3 है, 2 है। जब ग्रुप डेटा होगा तो आपके पास ये पॉसिबल लाजमी नहीं है कि वो रिपीट हो वैल्यूज कोई भी। तो आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मीनिंग कि जो सारी जो डिजिट होंगे उसमें ज़्यादा जो नंबर होगा वो आपके पास फ्रिक्वेंसी होगी उसकी। अब देखें इसमें हाईएस्ट डिजिट क्या है जी, 30 है ना, बाकी को कंपेयर करें अगर, तो आपके पास ये मॉडल क्लास होगी जी। ठीक होगा, ये 30 आपको फाइंड आउट कर लिया, और इसका जो है ना एल की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली है, ये आपके पास आ गई 64 टू 66। तो एल जो है हम क्या कहते थे, लोअर लिमिट। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, आपके पास ये दो डिजिट दी हुई हैं, मतलब 64 65 66, इसमें लोअर आपके पास क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी। तो आपने एल की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या जी, ये वाला डिफरेंस निकालना है आपने, डेल्टा 1। तो डिफरेंस क्या है जी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी आपने देख ली 30 है, इसको आपने प्री जो आ रही है फ्रिक्वेंसी उससे माइनस कर, ये डेल्टा 1 आ जाएगा। अब डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या होता है, जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसको इसमें से माइनस करना है, तो आप ये डेल्टा 2 भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट का पास ये आई रह जाता है, जैसे पीछे हमने देखा था जो डिफरेंस है इनका इसमें वो होगा। अब 60 में से 58 को माइनस करें तो 2 का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह 62 में से 60 का करें 2, इन सब में 2 का डिफरेंस आएगा, तो आई आपके पास 2 आ जाएगा। तो वैल्यू आपने निकाल ली, तो वैल्यू पुट करें आपके पास ये, तो आंसर जो आ जाता है आपके पास आ जाता है 0.4। तो सर इसका इतना मॉड शोर आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। सर आप म्यूट कर दीजिए, इकरा हादिद का माइक कम हुआ है। इकरा हालत ही अवॉइड करें इन चीज़ों को। बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं आपकी वजह से। अच्छा जी, एक दो फिर रिपीट कर देते सर हैं ये जी। वाला ग्रुप ग्रुप वाला दोबारा समझा दें सर, नहीं समझ आ रहा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो उसमें आपने क्या देखना है कि पीछे था जी आपके पास हम ग्रुप में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अब इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज नहीं होगी ग्रुप में। तो इसमें आपने क्या करना है, सिलेक्ट वो वाली वैल्यू करनी है जो हाईएस्ट वैल्यूज होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब इस केस में जब आपने रेंज ऐसा करके देखा तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके पास वैल्यूज है वो 30 है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कहीं 40 की वैल्यू होती तो फिर वो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होती है आपके पास? हाँ जी, अगर इस सीरीज में नंबर ऑफ कंपनीज में 40 की वैल्यू होती, इसी में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 3 की जगह, तो हाईएस्ट वैल्यूज फ्रीक्वेंसी कौन सी होती फिर इन पूरे सीरीज में? 40 40 40 होती, ठीक है। अब इस केस में जो कि हमारे पास दिया हुआ है वो 30 है, तो ये वाली जो होगी आपके पास ये मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास से आप जो है ना एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट इसकी क्या होगी, ये मॉडल क्लास की जो है ना हाइट दी हुई है, तो 64 इसकी लोअर लिमिट होगी। तो आपके पास 64 लिमिट आ गई। अब क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपने देखती हो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई जी, 30 आ गई, ठीक है। सेकंडली आपने क्या मेजर करना था जी, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो आपके पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आई उसके ऊपर वाली जो होगी प्री मॉडल क्लास, ठीक है। इसके ऊपर वाली ये फ्रिक्वेंसी आ गई, इसके ऊपर वाली को प्री मॉडल कहेंगे, नीचे वाले की पोस्ट मॉडल कहेंगे। इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा 5, तो आप माइनस करके निकालेंगे ये आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब जो है डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 कैसे होगा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है उससे पोस्ट मॉडल क्लास जो है वो आपने डिफरेंस निकालना है। पोस्ट मॉडल ये होगी, प्री मॉडल 25 होगा, पोस्ट मॉडल 10 आ जाएगा। तो आप इनको करके निकालें, जैसे चलें पहले इसके डेल्टा 1 निकालते हैं। 30 में से 25 निकाले तो 5 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा 1 5 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा 2 निकालने के लिए 30 में से 10 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा।
आपके पास एल भी आ गया, आपके पास डेल्टा 2 भी आ गया, डेल्टा 1 भी आ गया, और आपने आई की वैल्यू निकालनी है, जो ये वाला आई है। तो हाइट कहते हैं किसी भी क्लास की। तो इसमें डिफरेंस देखें, सब में 2 का डिफरेंस है जी। 60 में से माइनस करें 58 को तो 2 आ जाता है, ठीक है। 62 में से माइनस करें 60 को तो आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह सब में को डिफरेंस है जो 2 है, तो आपके पास जो हाइट आएगी क्लास की वो 2 होगी, मीन्स कि आई की वैल्यू 2 होगी। तो आप सारी वैल्यूज पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 64.4 होगा। तो इस तरह जो है आप जो है ना मोड स्लाइड नहीं शो हो रही, कैलकुलेट कर सकते। स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड फिर आप अपना इंटरनेट चेक कर लें, बाकी लोगों को शो हो रही है। अब हो रही है। कब हो रही है? ठीक हो गया जी। अब जी हम कहते हैं कि जो है मोड को आप आल्सो कैलकुलेट बाय इनडायरेक्टली अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपके पास फार्मूला दिया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, और ये फार्मूला पुट करना है। तो आपने क्या करना है कि जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला इसमें गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है जी, एटलीस्ट 3 एग्जांपल सॉल्व करनी है इसको बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। हाउ टू कैलकुलेट मोड बाय इनडायरेक्टली यूजिंग दिस फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड आउट करनी है, वहाँ से आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करके आपने मोड कैलकुलेट करना है। ये आपका इस लेक्चर का होमवर्क है, ठीक है। अब है जिसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज हो सकता है, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली हो सकता है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। कुछ इसके मोड्स के मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज है, नॉट केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। तो इस तरह जी आपका मोड जो है ये फिनिश होता है। आप देखते हैं जी हम इनका रिलेशनशिप, क्योंकि हमने देखा है जी मीन पढ़ा है आपने, मीडियन पढ़ा है जी, एंड लास्टली आपने देखा है मोड देखा है। अब हम इन 3 मेजर्स को कैसे जो है ना आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जी, अगर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी वैल्यूज की, किसी भी सीरीज की, वो सिमेट्रिकल हो। ये सिमेट्रिकल क्या है जी, आप यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं, दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज आ जाती हैं, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं कि जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, एक जैसा ही है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देन मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड। मीन्स के तीनों वैल्यू जो है ना वो इसी लाइन में, जैसे मैं कहता हूँ आपके पास ये मीन है, ठीक है। मीन हम कहते हैं कि यहाँ पे मीन वैल्यू आ गई, ये आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब मोड भी यहाँ पे आ, ये चीज फ्रिक्वेंसी मेंशन कर रही है, ये वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। तो तीनों एक ही लाइन में आ रही हैं, मीन के तीनों इक्वल ही हैं। तो सिमेट्रिकल केस में जो आपके पास जो रिलेशनशिप होगी, मीडियन मोड जो है इक्वल ही होंगे, उनकी एक ही वैल्यू होगी। अब जी नेक्स्ट असिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एसिमेट्रिकल में देखिए आपके पास इस तरह का जो है ग्राफ आएगा। अब उस केस में क्या था जी, पीछे देखें देखिए इक्वल है, यानी इस जो बेस लाइन को इक्वल या टच कर रहा है, बिल्कुल एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ आ जाता है, यहाँ से देखिए ये टेल उस तरफ मूव कर रही है, नीचे टच नहीं कर रही, मतलब इसमें गैप है, इसमें कुछ वैल्यूज है। इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो एसिमेट्रिकल होती है। इसको फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, एल शेप है आपके पास, जे शेप है, नेगेटिवली पॉजिटिवली कह सकते हैं। अब अगर ये आती है राइट साइड पे, ये टेल शो करे तो उसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। अगर ये टेल इस तरफ शो करे उसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो इसके में क्या होगा, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा आपके पास, इस वजह से स्पेटिकल कहते हैं। चलेंगे अब देखते हैं पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होगा। मीन जो है ग्रेटर देन होगा मीडियन से, मीडियन ग्रेटर देन होगा मोड से, ठीक है। इसका जो रिलेशनशिप देखें तो इस केस में आपने रिमेंबर करना है, आपने याद रखना है कि जो मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से। नेगेटिव केस में देखें, अब जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव स्क्यूड में जो ये टेल होती है इस राइट साइड पे होती है, नेगेटिव में जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे होगी स्क्यूड, इसको नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं।
इस केस में क्या होगा, अब इसमें क्या था जी, मीन ग्रेटर देन मोड, मोड ग्रेटर देन मीन, मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड। अब इसमें क्या होगा, मीन जो होगा लेस मीडियन, मीडियन लेस देन मोड, तो ये रिलेशनशिप होगा इनका। अब इस तरह की अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ये देखें एल शेप है और किस तरफ है आपकी, राइट साइड पे, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगी और एल शेप होगी। तो इसमें आप जो रिलेशनशिप देख सकते हैं, मीन इज लेस देन मोड एंड मीन इज लेस देन मीडियन। तो नेक्स्ट आ जाती है जी जे शेप, जो आपके पास देखें जे की शेप में है और ये राइट साइड पे आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो इस वजह से नेगेटिवली होगा। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें मीन क्या होगा, ये ग्रेटर देन मोड होगा और मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा। तो इस तरह आप उसमें इनका जो रिलेशनशिप आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर आपका